Good morning students. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Yes student, today we will discuss about some more important topic regarding circles. Okay, we will discuss about the various parts of circle. Yes, let us see. Look at this circle. We can see that AB is a chord. AB divides the circle into two parts. Each part is called the arc of the circle. An arc is the portion of the boundary of the circle. This is the minor arc and this is the major arc. Symbolically, we represent the arc AB like this. When we draw the longest chord on this circle, we see that it divides the circle in two equal parts. Each part is called a semicircle. Circle with different radii and same center is called concentric circles. A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector of circle. A pie-shaped part of a circle is called the sector. A region in the interior of a circle enclosed by an arc and a chord is called the segment of a circle. The yellow part and the pink part, both are the segments of the circle. The yellow part is the minor segment as it is made up of minor arc or the shorter arc and the chord, whereas the pink part is called the major segment as it is made up of major arc or bigger arc and the chord. So, a chord divides a circle into two parts, minor segment and major segment. A major segment is formed by the major arc and the chord, whereas a minor segment is formed by a minor arc and the chord. What if this chord passes through the center of the circle? We know that when a chord passes through the center of the circle, then it is called as the diameter of the circle. And a diameter divides a circle into two equal halves. Each half is called a semicircle. Let us consider a line outside a circle. Now, when we move this line slowly toward the circle and stop here, we see that the line touches the circle at just one point. In such a situation, this line is called as the tangent to the circle. If we name the circle and line like this, we say that the line L is tangent to the circle with center O. Now, let us move the line further toward right and stop here. We see that the line cuts the circle in 2 points. So, this line is called as a second to the circle. The line L is cutting the circle in A and B. A second is a line that intersects the circle in 2 points. Good morning students. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Yes student, today we will discuss about some more important topic regarding circles. Okay, we will discuss about the various parts of circle. Yes, let us see. Yes student, what you have learned, the first topic is major and minor arc of circle. Student, major arcs और minor arcs क्या होती हैं सर्कल की? देखिए, if the arc of a circle is greater than the सेमीसर्कल इट इज कॉल्ड मेजर आर्क. तो आपको पता है सेमीसर्कल क्या होता है? डायामीटर जब सर्कल को डिवाइड करता है तो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में. ओके, तो हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स आते हैं, आधा सर्कल. तो देखिए, अगर आपकी आर्क आपने पढ़ा था पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस. इफ द आर्क, अगर आपकी आर्क ग्रेटर है सेमी सर्कल से, आधे सर्कल से बड़ी है, तो उस आर्क को आप मेजर आर्क बोलेंगे. ओके, इन फिगर 1 ADB, ऊपर आर्क का साइन इज द मेजर आर्क. तो देखिए ये फिगर 1 है, इसमें ADB स्टूडेंट ADB. तो देखिए यहां से लेके यहां तक की जो आर्क है ये क्योंकि आधे सर्कल से ज्यादा है तो इट इज अ मेजर आर्क. ओके, इफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द सेमी सर्कल, और अगर सेमी सर्कल आधे सर्कल से कम है तो इट इज कॉल्ड माइनर आर्क. ACB इज द माइनर आर्क. तो देखिए यहाँ पे ACB, यहां तक की जो आर्क है ये आधा सर्कल नहीं, उससे कम है,
तो इसका मतलब इट इज अ माइनर आर्क। ओके बच्चे, अगर आधी आर्क है, पूरी हाफ आर्क है तो सेमी सर्कल, हाफ से कम है तो माइनर आर्क और हाफ से ज्यादा है तो मेजर आर्क। ओके, यस, सेगमेंट। What is segment? The area bounded by an arc, किसी भी आर्क एंड अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक ऐसा एरिया जो एक आर्क और कोड ने बनाया है, उनके बीच का एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, तो देखिए इस फिगर में ये कोड है, पी क्यू इज अ कोड और पीछे पी आर क्यू, दिस इज अ आर्क। आर्क और कोड के बीच के इस एरिया के स्टूडेंट क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ओके, अब देखिए आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैम पीछे ये भी एक आर्क है और ये एक कोड है, तो ये सारा भी तो सेगमेंट है। आपने बोला है एरिया बिटवीन द आर्क एंड कोड, तो ये भी तो सेगमेंट हो। तो यस स्टूडेंट, ये भी सेगमेंट है। ये है मेजर सेगमेंट और ये है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट ध्यान रखना किस किस के बीच का एरिया होता है? आर्क और कोड के बीच का। आर्क और कोड के बीच के एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। अगर माइनर आर्क, छोटी आर्क आपकी बनाती है तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़ी आर्क, मेजर आर्क ने बनाया है तो बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, तो देखिए द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर, आगे कहता है जिस सेगमेंट में सेंटर आएगा इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये वाला यहाँ तक का, तो इसमें सेंटर आ रहा है तो इसलिए ये मेजर सेगमेंट होगा। ओके, एंड द सेगमेंट नॉट कंटेनिंग द सेंटर, और जिस सेगमेंट में सेंटर नहीं आ रहा वो बनेगी माइनर सेगमेंट। ओके, फिगर 2 में पी आर क्यू पी, देखिए बच्चे ये एरिया को कैसे लिखेंगे? पी आर क्यू फिर पी, यहां तक का एरिया, तो इट इज कॉल्ड शेडेड रीजन इज माइनर सेगमेंट, एंड पी एम क्यू पी ब्रैकेट में लिखा अनशेडेड वाला इज मेजर सेगमेंट। देखिए पी एम क्यू पी, ये वाला जो पोर्शन है अनशेडेड वाला, ये क्या है? मेजर सेगमेंट, और जो शेडेड वाला है ये क्या है? माइनर सेगमेंट। तो कोड और आर्क के बीच के एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। नाउ सेक्टर, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, फिर एक आर्क एंड टू रेडियाई, दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को बोलते हैं सेक्टर। सेगमेंट में क्या था? एक आर्क और कोड, और सेक्टर में क्या है? एक आर्क एंड टू रेडियस। ओके, और वो रेडियस क्या है, क्या होनी चाहिए? ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर को मिलाती हो किससे? एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क से, आर्क के एंड पॉइंट से, जो आपने आर्क ली है ना उसके एंड पॉइंट से सेंटर तक की जो रेडियस है उनको हम बोलेंगे, उनसे बनने वाले एरिया को बोलेंगे सेक्टर। ओके, तो देखिए इस फिगर में देखिए बच्चे, देखिए दिस इज अ आर्क, ये छोटा सा पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, ए सी डी ये आर्क है, और ओ ए इज द रेडियस, ओ डी इज द रेडियस। तो देखिए टू रेडियाई हो गई, एक आर्क हो गई। तो ये पिज्जा का जो एक पोर्शन होता है, आपने खाया है ना, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर। फिर आप देखिए टू रेडियस, और ऊपर भी तो यहाँ तक ये क्या है? आर्क, यहां तक ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? सेक्टर। ये शेडेड वाला भी सेक्टर है, अनशेडेड वाला भी सेक्टर है, बट क्या फर्क है? क्योंकि ये छोटी आर्क ने बनाया है तो माइनर सेक्टर, और यहां से लेके यहां तक बड़ी आर्क ने बनाया है तो मेजर सेक्टर, ऊपर वाला। ओके, तो सेक्टर क्या होता है? आर्क और टू रेडियाई के बीच के एरिया को बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इन फिगर 3? ओ ए बी डी शेडेड रीजन, ओ ए बी डी ऊपर वाला शेडेड रीजन इज द मेजर सेक्टर, एंड ओ ए सी डी, ओ ए सी डी ये छोटा सा पार्ट अनशेडेड रीजन इज माइनर सेक्टर। यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, जो आपकी रेडियस होती है उसका दुगना, ट्वाइस मतलब उसका 2 टाइम्स क्या होता है? डायामीटर। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r। जब भी आपको रेडियस पता होगी और डायामीटर निकालना होगा तो स्टूडेंट उस रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा? डायामीटर। ओके, एंड अनदर रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर, जो रेडियस है वो डायामीटर की हाफ होती है, डायामीटर से आधी होती है। तो सेम थिंग,
अगर रेडियस निकालनी है और डायामीटर दे रखा है तो डायामीटर को 2 से डिवाइड, और डायामीटर निकालना है और रेडियस दे रखी है तो रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, डायामीटर रेडियस का दुगना और रेडियस डायामीटर की हाफ। ओके, नाउ कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 और मोर सर्कल विद सेम सेंटर, 2 या 2 से ज्यादा जो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है स्टूडेंट, सेंटर क्या होता है, सेम, आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, इन फिगर 4 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन विद सेम सेंटर ओ। तो इस फिगर में देखिए बच्चे, 1 सर्कल ओ सेंटर वाला, फिर अनदर सर्कल बनाया रेडियस बड़ी लेके, और इसी सेंटर से थर्ड सर्कल बनाया। तो 3 या 3 से ज्यादा जो सर्कल्स, 2 या 2 से ज्यादा जो सर्कल्स होते हैं पर उनका सेंटर सेम होना चाहिए, उन सर्कल्स को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.6. इसके 2 क्वेश्चन वी हैव डन यस्टरडे. ओके, नाउ first question, multiple choice. In a circle, the area bounded by arc and 2 radii joining the center to the end points of the arc is called, आपको बताया था कि एक आर्क और 2 रेडियाई के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क या सीकेंट, अपने आप करेंगे आप। सेकेंड, द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 20.4, किसी सर्कल का जो डायामीटर है वो दे रखा है 20.4। आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, तो रेडियस क्या होगी, तो आपको पता है बच्चे रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दे तो रेडियस आ जाएगी, क्या होगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, तो कितनी आई रेडियस, दैट इज 10.2. ओके, थर्ड, द एरिया बाउंडेड बाय अ डायामीटर एंड द सेमी सर्कल इज कॉल्ड, देखिए क्या कहता है, एरिया बाउंडेड बाय द डायामीटर, डायामीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या फिर हम कह सकते हैं अ लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर। तो डायामीटर और सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, इसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं, तो बच्चे दैट इज सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रीजन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड हम कर चुके थे, थर्ड हमने कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालने को कह रहे हैं, हुज डायामीटर इज, और बच्चे आपको डिफरेंट डिफरेंट डायामीटर दे रखे हैं। तो आप सिंपल, सबसे पहले एक पार्ट आपको मैं करके दिखा रही हूँ, ओके, अदर पार्ट्स आप खुद करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 4 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 14 सेंटीमीटर, रेडियस निकालनी है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू d/2, डायामीटर बाय 2। तो r कितनी आ जाएगी, डायामीटर 14 दे रखा है तो 14/2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चे आप सारे पार्ट्स करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, फाइंड द डायामीटर, इस बार आपको डायामीटर निकालना है, हुज रेडियस इज, और अलग अलग रेडियस दे रखी हैं, आपको क्या निकालना है, डायामीटर। तो बच्चे यू नो दैट वेरी वेल कि डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है या 2 टाइम्स होता है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, एक पार्ट करा रही हूँ, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 4 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है, आपको फॉर्मूला पहले जरूर लिखना है, डायामीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब ट्वाइस ऑफ r। यस, 2r की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज डायामीटर आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी हो तो डायामीटर कैसे निकलता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, और अगर डायामीटर दे रखा है और रेडियस निकालनी है तो डायामीटर को 2 से डिवाइड। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, बाय सीइंग दिस फिगर यू हैव टू आंसर दिस फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट, नेम द मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट देखिए इस फिगर में मेजर सेगमेंट क्या होगी, मेजर सेगमेंट मैंने आपको बताया था कोड के और मेजर आर्क के बीच के एरिया को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या है, कोड, और दिस इज द मेजर आर्क। एक कोड ही सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नीचे वाला पोर्शन माइनर आर्क में डिवाइड किया, ऊपर वाला पोर्शन
मेजर आर्क में डिवाइड किया, ओके, कॉर्ड ने। और डायामीटर होता तो वो सेमी सर्कल में डिवाइड करता। तो देखिए दिस इज द मेजर आर्क और दिस इज कॉर्ड। तो इस रीजन को बोलेंगे, इस वाले को मेजर सेगमेंट। तो नेम कैसे देंगे? इस कॉर्ड के किसी भी एंड पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। पी से स्टार्ट करते हैं, पी ए क्यू, अगेन एंड करेंगे पी पे क्योंकि ये एरिया है, ओके। तो पी ए क्यू पी, दिस इज द मेजर सेगमेंट। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताना है? नेम द सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। कोड भी होता है बट कोड में लाइन सेगमेंट बोलते हैं और सीकेंट में लाइन बोलते हैं। तो देखिए पी क्यू लाइन जो है वो सीकेंट है क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो पी क्यू आप ऊपर लाइन का साइन जरूर बनाना, ओके। थर्ड पार्ट में पूछा है माइनर सेगमेंट। तो बच्चे माइनर सेगमेंट क्या था? माइनर आर्क ने और कोड ने जो एरिया बनाया है ये वाला, ओके। तो नेम क्या दोगे? पी बी क्यू अगेन पी, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, पी बी क्यू पी, ठीक है। माइनर आर्क ने जो बनाया है कोड के साथ। फोर्थ में आपसे पूछा है मेजर आर्क। बताइए इसमें मेजर आर्क कौन सी है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट सारा सर्कल का यहां तक का, ठीक है। क्या है ये? मेजर आर्क। और नीचे वाला देखिए दिस इज माइनर आर्क, ओके, क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ा है। तो इसका मेजर आर्क आप क्या साइन बनाएंगे? ए, देखिए पी ए क्यू, पी ए क्यू, ऊपर आर्क का साइन जरूर लगाएंगे, ओके। तो दिस इज द मेजर आर्क। यस, फिफ्थ पार्ट माइनर आर्क। तो बताइए माइनर आर्क कौन सी है? यही छोटे वाले पी बी क्यू। तो फिफ्थ पार्ट में आप क्या लिखेंगे? पी बी क्यू और ऊपर साइन आर्क का, ओके। तो व्हाट इज योर होमवर्क? कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.6 इन फेयर नोटबुक। बट बिफोर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज, बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज, you have to write the definition which we have done before this exercise.